یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 25 جون 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کرسچن سائنس۔ سنہری متن: تیموتھیوس۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ اے خدا، مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا۔ مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا، بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا۔ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اس میں میری خوشی ہے۔ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ اپنے بندہ کے لیے اپنا قول پورا کر۔ دیکھ، میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں، مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر۔ درسی واز بائبل میں سے یرمیہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہیں۔ دانیل۔ اور نبوکدنضر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بےتاب ہے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، اب تک جیتا رہ، اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے۔ کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کسدی سے کیا ہو۔ اس لیے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کریں۔ تب وہ دانیل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے، اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا اور کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اس کی ہے۔ وہی حکیموں کو حکمت اور دانشمندوں کو دانش عنایت کرتا ہے۔ وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ تب نبوکدنضر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں، اور کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے، اور اسے بابل کے تمام صوبوں پر فرمانروائی بخشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی۔ متی
اور यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मत्ती। और जब वो घर खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। मत्ती। फिर उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। मत्ती। और कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरौतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें। यीशु ये मालूम करके वहां से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको अच्छा कर दिया। और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, क्या ये बदरूहों के सरदार बेलजबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता? उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बिलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुनसफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से रूहें निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। मत्ती। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। यूहन्ना। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर कहीं। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए ना डरे। तिमोथियस, तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा।
साइंस और सेहत। ये समझना चाहिए कि खुदा अब्दियत का काम है और वो सोच, तवानाई और ख्वाहिश की मुकम्मल तकदीस का मुतालबा करता है। हम सब मुनासिब तौर पर ये जानते हैं कि रूह खुदा इलाही असूल से आती है और इसकी तालीम मसीह और क्रिश्चियन साइंस के वसीला मिलती है। अगर इस साइंस को अच्छी तरह से सीखा और मुनासिब तौर पर समझा गया है तो हम इससे कहीं दुरुस्त तरीके से सच्चाई को जान सकते हैं जितना कोई माहिर फल्कियात सितारों को पढ़ सकता या किसी ग्रहण का अंदाज़ा लगा सकता हो। ये ज़हन खानी गैब बीनी के बिल्कुल उलट है। ये रूहानी फ़हम की तबानी है जो रूह की सलाहियत को ज़ाहिर करती है, ना कि मादी हिस्स की। ये रूहानी हिस्स इंसानी अक़ल में उस वक्त आती है जब मौखरुल ज़िक्र इलाही अक़ल को तस्लीम करती है। अगरचे ये शुमारा अपने अंदर शिफाइया अक़ल की मुकम्मल साइंस को रखता है, ताहम ये कभी मत समझें कि आप इस किताब का महज सादा सा मुशाहिदा करने से साइंस के मुकम्मल मफ़हूम को पा लेंगे। इस किताब का मुताला करने की ज़रूरत है तो साइंसी शिफा के असूलों का इजहार क्रिश्चियन साइंस की रूहानी बुनियाद पर मजबूती के साथ आपको नस्ब कर देगा। ये सबूत आपको उन नज़रियात के फना होने वाले आसार से बुलंद करता है जो पहले से मतरूक हो चुके हैं और आपको हस्ती के उन रूहानी हक़ाइक़ को समझने के काबिल बनाता है जो अब तक लाहासिल और बज़ाहिर मध्यम थे। हमारे मालिक ने बीमार को शिफा दी, मसीही शिफा की मशक की और अपने तालिब इल्मों को इसके इलाही असूल की अमूमियात सिखाईं, मगर उसने शिफा के इस असूल को ज़ाहिर करने और बीमारी से महफूज रहने के लिए कोई हतमी असूल वज़ा नहीं किया। क्रिश्चियन साइंस में ये असूल दरियाफ्त करने के लिए रखा गया है। क्रिश्चियन साइंस समझी जाती है कि सहाफ़ के साथ मुताबिकत रखती है और हर वो नुक्ता जो ये पेश करती है उस पर मंतकी और नुमाइशी तौर पर कायम रहती है, वगरना ये साइंस न होती और अपने सबूत पेश न कर पाती। ये गलती के खिलाफ सच्चाई का ऐसा साफ और शिफाफ फैसला पेश करती है जिसे अंबिया की तरफ से, यीशु की तरफ से और उसके शागिर्दों की तरफ से वैसे ही बयान और पेश किया गया जैसे पूरे कलाम में ये रिकॉर्ड मौजूद है। क्रिश्चियन साइंस और मसीहत एक हैं, तो फिर मसीहत की निस्बत क्रिश्चियन साइंस में हम कैसे सच्चाई और गलती, रूह और मादे दोनों की ताकत और हकीकत पर यकीन कर सकते और दोनों मुतजादात पर उम्मीद रखने में कामयाब हो सकते हैं। हमारे मालिक ने मादी कानून को इसके बरखिलाफ शिफा देते हुए कलअदम कर दिया। हम मालिक के नमूने की पैरवी करने की तलकीन करते हैं। हमें मादी कानून को रूहानी कानून के मातहत रखना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस के दो बुनियादी निकात ये हैं कि ना जिंदगी ना इंसान मरता है और कि खुदा बीमारी का मुसन्नफ नहीं है। क्रिश्चियन साइंस बदन के लिए सच्चाई की धूप लाती है जो तवाना करती और पाक करती है। क्रिश्चियन साइंस सच्चाई के साथ गलती को बेअसर करते हुए एक मुतबादिल के तौर पर काम करती है। ये रतूबतों को बदलती, रतूबत को खारिज करती, रसौलियों को तहलील करती, सख्त पट्टों को आराम देती और बसीदा हड्डियों की तंदुरुस्ती को बहाल करती है। इस साइंस का असर इंसानी अक्ल की बुनियाद को तब्दील करता है जिस पर ये इलाही अक्ल के साथ हम-आहंगी को तस्लीम कर सके। तजर्बात ने इस हकीकत की हिमायत की है कि अक्ल जिस्म पर हुकूमत करती है, सिर्फ एक मौका पर नहीं बल्कि हर मौका पर। रूह की नाकाबिल तलाफी लियाकतें मादे की शराइत के बिना और नाम नहाद मादी वजूदियत के झूठे अकीदे के बिना भी वजूद रखती हैं। जब हम खुदा की शिफा देने वाली ताकत पर ईमान खो देते हैं तो हम उस इलाही असूल पर अदम एतमाद रखते हैं जिसे क्रिश्चियन साइंस जाहिर करती है, तो फिर हम बीमार को शिफा नहीं दे सकते, ना ही हम रूह की मदद के वसीला शिफा दे सकते हैं अगर हम खुद को मादी बुनियादों पर कायम करते हैं। साइंस दिखाती है कि मादा फ़ानी आरा और अकायद के साथ मुतसादम होते हुए
हर दौर में गलती के असरात को खारिज करता है, लेकिन जब फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर इसकी मुखालफत क्रिश्चियन साइंस की जानब से होती है तो फ़ानी अक्ल का माहौल इखलाक और मौत के लिए तबाहकुन नहीं हो सकता। इस ज़हनी गलाजत के लिए सच्चाई और मोहब्बत जहरमार हैं और यूं ये वजूदियत को तक़वियत देते और बरकरार रखते हैं। हवासे खमसा से हासिल शुदा गैर ज़रूरी इल्म महज आर्जी फ़ानी अक्ल का नज़रिया फ़हम का नतीजा है, ना कि रूह जान का, और ये उस सब की अलामत पेश करता है जो बद और ज़वाल पजीर है। फितरी साइंस, जैसा कि अमूमन इसे कहा जाता है, हकीकतन फितरी नहीं और ना साइंसी है, क्योंकि ये मादी हवास की गवाही से जन्म लेती है। इसके बरक्स ख्यालात रूह से जन्म लेते हैं। इलाही साइंस कामिल है और ये इसके असूल और कानून को सीखने के लिए इजहार के ज़रिए इसे कायम करते हुए किसी दरमियानी रास्ते की इजाज़त नहीं देती। क्रिश्चियन साइंस आम असूल से इस्तिस्ना नहीं है, यानी सीधे अंदाज में मेहनत के बगैर कोई बरतरी नहीं। कोई शख्स अपना निशाना मुंतशिर करके उसी लम्हे हदफ पर निशाना नहीं लगा सकता। दीगर शोबों की पैरवी करना और साइंस के इजहार में तेज़ी से तरक्की करना मुमकिन नहीं। क्रिश्चियन साइंस की वजाहत इसके रूहानी फ़हम में पिनहा है और इसके शागिर्दों को इस साइंस के मानी पाने के लिए ये फ़हम लाजमी हासिल करना चाहिए। अगर क्रिश्चियन साइंस मारूफ देवताओं, गुनाह, बीमारी और मौत को दूर कर देती है तो ये मसीह सच्चाई ही है जो इन बदियों को नेस करता है और यूं इनके अदम को साबित करता है। इस ख्वाब को कि मादा और गलती कुछ हैं, मुकाशफा और वजह को तस्लीम करना चाहिए। फिर बशर बीमारी और गुनाह के अदम पर तवज्जो देंगे और गुनाह और बीमारी शाऊर से गायब हो जाएंगे। हम आहंग हकीकी ज़ाहिर होगा और गैर आहंग गैर हकीकी। जो शख्स क्रिश्चियन साइंस को समझता है वो क्रिश्चियन साइंस के इलाही असूल के मुताबिक बीमार को शिफा दे सकता है, और ये अमली सबूत ही वहद आसान गवाही है कि वो शख्स इस साइंस को समझता है। क्रिश्चियन साइंस और इलाही मोहब्बत की ताकत कादिर मुतलिक है दर हकीकत गिरफ्त को ढीला करना और बीमारी, मौत और गुनाह को नेस्त करना जायज़ है। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मक़ासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज़ ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मक़ासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं साइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने क़ायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।